Good morning, students. Last day I explained about the chapter acid, base and salt. Already I had discussed about the acid and its types. Acid are classified into two types. One is a strong acid and other is weak acid. Last day I explained also about the strong acids. Now today I also revision this topic, strong acids. Strong acid means, students, those acids which are completely dissociate and form hydrogen, maximum amount of the hydrogen ions. These are the strong acid. All the mineral acids, हमने लास्ट टाइम में भी हमने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं दोज आर मिनरल एसिड, ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड. लाइक दैट एग्जांपल HCl, hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. These are the mineral acids which are strong acid, because these acids on hydrolysis give the maximum amount of hydrogen ions. Hence these are the strong acids. Now the another topic today I discuss about, that is weak acid. Weak acid. Students, weak acid means those acids which are partially ionized and form hydrogen ions. These are the weak acids. Partially ionized. Strong acid means completely ionized, completely dissociate, and weak acid means partially dissociate and form hydrogen ions. These are the weak acid. All the organic acid are the weak acid. All the organic acid are weak acid. Like that, एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो फॉर्मिक एसिड, लाइक दैट HCOOH, मेथेनोइक एसिड आल्सो, दिस इज द एसिटिक एसिड CH3COOH, etc. All these acids are weak acid because these acids on dissociate, then they are the partially ionized. Hence these are the weak acid. Students, so that these are the types of the acid. Acids are classified into two forms. One is the strong acid. The example of the strong acid, HCl, HNO3 and H2SO4. These are the strong acid. And the weak acid, the example of the weak acid is formic acid and the acetic acid, etc. These are the weak acids. Students, अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक एसिड का एग्जाम्पल बताइए, तो बेटा हमने आपको जितना भी मिनरल एसिड्स होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और जितना भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे तो वो आपका वीक एसिड होंगे. बेटे इस चैप्टर में हमें केवल ओनली मिनरल एसिड्स के बारे में ही पढ़ना है, और ये सब वीक एसिड आप चैप्टर 4 में जा करके पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स में. तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब एसिड्स के बारे में. अब थोड़ा सा हम जानकारी बेस के बारे में भी लेंगे कि बेस क्या होता है. एक्चुअली जो बेसिस है, बेसिस बड़े बेस मीन्स those compounds which on hydrolysis it form OH ion. Base means ऐसा कंपाउंड जिसको हम हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें OH आयंस में कन्वर्टेड हो जाते हैं. ऐसा कंपाउंड जिसको हम हाइड्रोलाइसिस करने के बाद OH आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, या OH आयंस हमें क्या प्राप्त होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेसिस कहलाते हैं. जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH on electrolysis or hydrolysis it form NaOH.
plus OH ions. So that due to the formation of OH ions, these are the base. Students, इसके अलावा base are those substances which are bitter in taste. Bitter in taste. Bitter in taste. Bitter means कड़वा. Bitter means कड़वा. In taste. बेटे बेस सब्सटेंसेस होते हैं जो बीटर इन टेस्ट होते हैं. दूसरी बात, किसी भी सब्सटेंसेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो OH आयंस का फॉर्मेशन होते हैं, बेस कहलाते हैं. तीसरी बात बेटे, बेसेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्टेड कर देते हैं. बेसेस आर दोज व्हिच आर कन्वर्टेड रेड लिटमस पेपर इन ब्लू. रेड लिटमस को कन्वर्टेड करते हैं ब्लू लिटमस में. रेड लिटमस को कन्वर्टेड कर देते हैं ब्लू लिटमस में. दीज आर द बेसिस. एसिड के अकॉर्डिंग बेसिस को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक आपका होगा वीक बेसिस, दूसरा आपका होगा स्ट्रॉन्ग बेसिस. बेटे ये क्लासिफिकेशन बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज वीक basis, weak basis, and other is strong basis. Strong basis. नेक्स्ट टॉपिक में जब हम बेस की बात डिस्कस करेंगे देन 1 by 1 ये सब टॉपिक बेटे हम स्टडी करेंगे. फिलहाल अभी एसिड और बेस में हमने जनरल चीज़ आपको थोड़ा बहुत बताया है. अब आगे चलते हैं. इन एसिड और बेस की पहचान करने के लिए बेटा हमने यहाँ पर एक चीज़ बताया है, लिटमस. अब हम बात करेंगे लिटमस क्या होता है. इन लिटमस को पढ़ने से पहले हम अनदर टॉपिक जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं. द अनदर टॉपिक्स लाइक दैट इंडिकेटर्स. 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 बेटे इंडिकेटर मीन्स एक्चुअली इंडिकेटर्स विच आर कॉल्ड इन हिंदी सूचक. सूचक किसी भी सब्सटेंसेस को पहचान करने के लिए एक इंडिकेटर की ज़रूरत होता है. जैसे सपोज यहाँ पर हमें ये जानकारी करना है कि एसिड और बेस को कैसे हम पता कर सकते हैं. अभी हमने जब डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो हमने एसिड में ये बताया था कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा तो वो एसिड होगा. ऐसे ही बेस है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्टेड करेगा तो वो बेस होगा. बेटा ऐसा सब्सटेंसेस जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, जो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, उस सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर कहलाते हैं. ऐसा सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर रिप्रेजेंटेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसिड एंड बेस, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. उसको हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर्स कहलाते हैं. मीन्स इंडिकेटर्स आर दोज which adding in the substances and change the colors, then these are the indicators. अगर किसी substances में हम इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज, इससे ये पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है. इसी से हमें इसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स यहाँ पर हम इसको 3 पार्ट में, जनरली 3 इंडिकेटर्स के बारे में हम एक पढ़ेंगे. वन इज लिटमस, थर्ड इज नॉक्टेलिन, and other is methyl orange. Methyl orange. स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स आपको समझ में आ गया होगा. इंडिकेटर्स मीन्स द सब्सटेंसेस विच आर रिप्रेजेंटेड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसिड एंड बेस. जब एसिड और बेस की सब्सटेंसेस, एसिड और बेस की हमें पहचान करना होता है, पहचान करने के लिए जिस सब्सटेंसेस का हम यूज़ करेंगे, दीज आर इंडिकेटर्स. वे क्या होंगे? इंडिकेटर्स होंगे.
इंडिकेटर्स में हम यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स आपके सिलेबस में बात करेंगे, लिटमस पेपर, नाफ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। बेटा इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स है, जब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इंडिकेटर्स हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर, बेटे जो नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, दोज इंडिकेटर्स विच आर फॉर्म बाय नेचर। नेचर से जो हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर मीन्स ऐसा इंडिकेटर जो नेचर से प्राप्त होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, दीज आर द, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स जो नेचर से हमें मिलते हैं। टर्मेरिक है, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन द नेचर्स लाइक दैट लिटमस पेपर। बेटा यहाँ पर अगर हम लिटमस पेपर की बात करते हैं, ये लिटमस पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लिटमस पेपर 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज ब्लू लिटमस पेपर एंड अदर इज रेड लिटमस पेपर। वन इज ब्लू लिटमस पेपर एंड अदर इज रेड लिटमस पेपर। बेटे ये जो लिटमस पेपर है, दीज आर फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ हैलोफाइटा। नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस पेपर विच आर फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ हैलोफाइटा। हैलोफाइटा के जो ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप से ये नेचुरल इंडिकेटर्स, ये लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर एक्चुअली हैलोफाइटा के जो ग्रुप्स हैं, हैलोफाइटा इज द डिवीजन ऑफ द प्लांट किंगडम्स सो दैट दिस कंटेन्स लाइकेन। बेटा लाइकेन से इस लिटमस पेपर्स का प्रिपरेशन होता है। जो लाइकेंस होता है उसी से हम लिटमस पेपर का फॉर्मेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो सो दैट लिटमस पेपर आर 2 टाइप्स ब्लू। अगर कोई आपसे पूछे कि लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है, तो डायरेक्ट लिटमस पेपर लाइकेंस का बना हुआ होता है जो बिलोंग करते हैं ग्रुप हैलोफाइटा में। अगर कोई आपसे पूछे किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, हैलोफाइटा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, so that you read this topic carefully and write in your copy. Thank you. Have a nice day.